Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science Grade 7. So students, all of you open your reading textbook page number 14. Work it out. Write the path of oxygen from outside of the body to the bloodstream using the word bank. Here are few word bank. We have to fill these word bank in their proper position. Outside of the body, so first one is nasal cavity. From first, air enter from the nasal cavity, then it move into the larynx, third it moves into the trachea, and fourth into the bronchi. What is a bronchi? Bronchi are the tubes of trachea, and bronchi are further divided into bronchioles. Then air move from bronchi to bronchioles, and then alveoli. From alveoli, air is moved to the capillaries, and then it moved to the blood stream. Page number 17. Right function of the following part of the digestive system. So it is the large intestine of digestive. It is a large intestine, and it is a part of digestive system. So its function is absorb salt and water and remove waste material from the body थ्रू एनस. सो स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि ये बॉडी के अंदर से सॉल्ट और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है, और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से पास आउट करती है थ्रू एनस. सेकंड इज माउथ. च्यूइंग ब्रेक द फूड इनटू पीसेस दैट आर मोर इजीली डाइजेस्टेड. सो माउथ का जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि ये फूड को च्यू करता है, मीन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. इंटेस्टाइन, its job is to absorb most of the nutrients from the food. So intestine का क्या function है स्टूडेंट्स? intestine फूड के अंदर जितने भी important nutrients होते हैं तो वो absorb करती है. तो हमारे जो फूड के अंदर जितने भी nutrients हैं, सबसे ज़्यादा जो digestion है वो small intestine में होती है. Last one is stomach. It works like a blender. It churn and squash the foods. Page number 15, definitions. Here are few definitions. Dear students, you have to prepare all these definitions. Now, exercise. Answer the following question briefly. First question is, why do we need to digest food? Info your answer. The human body cannot get energy directly from food, so they need to be simplified. So students, हम फूड को क्यों डाइजेस्ट करते हैं? क्योंकि जो फूड हम ले रहे होते हैं हम उनसे डायरेक्टली जो एनर्जी नहीं ले सकते. फिर उसके बाद हम फूड को इसलिए डाइजेस्ट करते हैं कि हमारी बॉडी फूड के जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं वो सिंपल मालिक्यूल में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सकेंगे, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो डेली रूटीन की जितनी भी वर्किंग है वो हम कर सकते हैं. Question number 1. From where do human obtain food? Also name some digestive system in the human body. Human obtain food from plants and animals. So students, human beings जितने भी हैं वो अपनी food के लिए plants और animals के ऊपर dependent होते हैं. Here are some system in the human body like digestive system, respiratory system, nervous system, circulatory system and muscular system. Pepsogin is released in the stomach. Why can't it digest stomach wall? So student, pepsogin जिसको stomach में रिलीज किया जाता है वो stomach की wall को digest क्यों नहीं करता? The stomach have a thick mucus lining. Stomach में क्या होती है? Thick mucus lining होती है. Pepsin is released in an inactive form. Inactive form, a pepsinogen. Pepsinogen is activated in the form of pepsin by the presence of HCl. This makes it impossible for pepsin to digest the stomach. So student, pepsinogen जो है वो stomach की walls को क्यों digest नहीं कर सकता? First of all तो इस वजह से क्योंकि stomach की जो wall है वो उसमें stomach की जो lining है वो thick mucus की होती है, और pepsinogen जो है उसको हम inactive form में release करते हैं. पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, तो पेप्सिनोजिन जो है वो स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. Why do we need to digest? Sorry, we have already done this question. What is the role of digestive juices in the process of digestion? Digestive juices contain enzyme that speed up the chemical reaction. So student, digestive juices जितने भी हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं वो कुछ एंजाइम्स कंटेन करते हैं. अब ये एंजाइम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं.
These enzymes break down food into different nutrients. और ये एंजाइम क्या करते हैं, फूड को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में तोड़ सकते हैं. What would happen to a person if his pancreas is removed from his body? So student, pancreas हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है. अगर हम किसी भी हेल्दी पर्सन के बॉडी से pancreas को रिमूव करें तो क्या होगा? It's possible to live without pancreas, but when the pancreas is removed, people are left without the cells that make insulin and other hormones that maintain the blood sugar level. These people develop diabetes, which can be hard to manage because they are totally dependent on artificial insulin. So students, ये तो पॉसिबल है कि अगर हमारी बॉडी से पेंक्रियाज को रिमूव किया जाए तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? अगर हमारी बॉडी से पेंक्रियाज को रिमूव किया जाए तो हम शुगर के मरीज हो सकते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन क्या करती है, ब्लड के अंदर से शुगर लेवल को कम करती है. और पेंक्रियाज का जो साइड इफेक्ट है वो यही है कि हम डायबिटीज के पेशेंट बन सकते हैं. और फिर हमें ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियल इंसुलिन को यूज़ करना पड़ता है, जो कि इंजेक्शंस की फॉर्म में हम लेते हैं, या फिर कुछ लोग मेडिसिन भी यूज़ करते हैं इंसुलिन ब्लड में शुगर की लेवल को कम करने के लिए. डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड इनटू एन ओवल लम्प्स इज कॉल्ड बोलस, व्हाइल काइम इज अ थिक क्रीमी सेमी सॉलिड मैस. सो स्टूडेंट्स, बोलस क्या है? ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड होती है, किस शक्ल में? ओवल लम्प्स होते हैं, जबकि जो काइम है वो क्या होता है? थिक क्रीमी सेमी सॉलिड मैस होता है. इफ अ पर्सन वॉमिट, प्रिडिक्ट विच पार्ट ऑफ हिज डाइजेस्टिव सिस्टम was unable to deliver the food to the next organ. So the answer is stomach. Students, एसोफेगस में वेव लाइक रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती है जो बोलस को मैदे की तरफ पुश करती है. इस हरकत की वजह से खुराक मैदे की तरफ मूव करती है, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि मैदा इस खुराक को दोबारा मुंह की तरफ ले आता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है. अब चूंकि मैदे की खुराक वापस मुंह में आ जाती है तो मैदा खाली रह जाता है, तो मैदा जो है अब खुराक को नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा स्टमक क्या है? खाली हो चुका है और हमारी जो स्टमक की फूड है वो वापस मुंह में आ गई हुई है. Ali ate a burger from a canteen. After some time, he had a stomach ache and also passed loose stool. Observe his physical condition and prepare your report. So students, अली क्या करता है? कैंटीन से बर्गर लेकर खाता है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसके स्टमक में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उसके अलावा उसको लूज स्टूल में डायरिया हो जाता है. तो आपने अली की फिजिकल कंडीशन को ऑब्जर्व करना और एक रिपोर्ट तैयार करनी है. जैसे अली ने क्या किया? अली ने कैंटीन से बर्गर लेकर खाया. अब अली ने जो बर्गर लेकर खाया वो उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस थे, और जिसकी वजह से अली की जो बैक्टीरिया और वायरसेस होने की वजह से उसकी जो फूड थी वो क्या थी? कॉन्टेमिनेटेड थी, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और वायरसेस थे. अब अली की जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से अली को क्या हो जाएंगे? डायरिया यानी लूज स्टूल हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट. लॉन्ग क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन टू फेजेस, नेमली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. सो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है ह्यूमन के अंदर वो 2 फेजेस में होता है. फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन एंड द सेकंड इज एक्सपायरेशन. व्हाट हैपन इन द इंस्पायरेशन? सो इंस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर इनटू द लंग्स. During inspiration, the muscles of the diaphragm contract and the diaphragm move downward. This movement increase the volume of the This result in the increase in the volume of chest cavity. The air pressure inside the chest cavity decrease. The oxygenated air present outside the body, being at high pressure, flow rapidly into the lungs. In the lungs, oxygenated air reach the alveoli. Alveoli are thin wall and are surrounded by a network of blood capillaries. The oxygen passes through the wall of the alveoli into the blood present in the blood capillaries. The oxygen is then supplied to all the tissues of the body. From tissue, the waste product carbon dioxide is absorbed by the blood and carried to alveoli of lungs for expiration. So students,
we are talking about the mechanism of respiration. We all know that mechanism of respiration can contain into two phases. First one is inspiration and the other is expiration. So first of all we will explain that what is inspiration. So student, इंस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एयर को लंग्स की तरफ लेकर जाते हैं. इंस्पायरेशन के दौरान डायाफ्राम के मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा और इस मूवमेंट की वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अब हवा का जो दबाव है वो चेस्ट कैविटी के अंदर कम हो जाएगा. ऑक्सीजनेटेड एयर तेजी से बॉडी के बाहर से लंग्स की तरफ जाएगी. लंग्स में जो ऑक्सीजन होगी वो एल्वोलाई में मूव करेगी. अब ऑक्सीजन क्या करेगा, जिस्म के बाकी हिस्सों, अब ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के बाकी हिस्सों में जाएगी और टिश्यूज से ब्लड क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड. टिश्यू अब ब्लड इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसे एक्सपायरेशन के लिए लंग्स की तरफ लेकर जाएगा. किसको लंग्स की तरफ लेकर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ लेकर जाएगा एक्सपायरेशन प्रोसेस के लिए. During expiration, the muscles of the diaphragm relax and diaphragm move upward. So student, inspiration में हमने कहा कि diaphragm के जो muscles हैं वो contract करेंगे और diaphragm downward move करेगा, जबकि expiration में diaphragm के muscles relax करेंगे और diaphragm upward move करेगा. This result the decrease in the volume of chest cavity. तो इसकी वजह से एक्सपायरेशन में क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा. द एयर प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज, और जो एयर प्रेशर होगी चेस्ट कैविटी के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगी. दिस पुशेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी. अब ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउटसाइड पुश कर देगा. सेकंड क्वेश्चन इज describe the function of small and large intestine in the digestive system. Function of small intestine. Small intestine consisting of three parts: duodenum, jejunum and ileum. First part of the intestine receive chyme. When the chyme enter the duodenum, it is mixed with secretion from the liver, pancreas and duodenum wall. The pancreas release pancreatic juice through the pancreatic duct to the duodenum. This juice contain enzyme that digest all carbohydrate, fats and protein in the chyme. The liver release bile through the bile duct to the duodenum. It is stored in the gallbladder if need be. The next part of the intestine is jejunum. The remaining part of the intestine is called ileum. The food that remain undigested in the duodenum is completely digested in the jejunum and ileum. After digestion, food is absorbed by the small intestine. So स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है. फर्स्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं, सेकंड को जेजेनम एंड द लास्ट इज इलियम. सबसे पहले क्या होगा कि इंटेस्टाइन जो है वो काइम को रिसीव करेगी. अब काइम क्या है, ये थिक क्रीमी सॉलिड मैस है फूड का. अब ये जो काइम है ये कुछ सिक्रीशंस के साथ मिक्स हो जाएगा लीवर में और इसके अलावा पेंक्रियाज और ड्यूडेनम की वॉल के साथ. अब पेंक्रियाज क्या करेगा, पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा. किसके जरिए, पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए. और ये जूस कहाँ पर रिलीज होगा, ड्यूडेनम में रिलीज होगा. अब ये जो जूस होगा ये कुछ एंजाइम्स को कंटेन करेगा जो क्या करेगा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं उसके अंदर काइम के अंदर उनको डाइजेस्ट कर लेगा. और इसके बाद लीवर क्या करेगा, बाइल को रिलीज करेगा बाइल डक्ट के जरिए और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएंगे. जो नेक्स्ट पार्ट होगा इंटेस्टाइन को उसको हम क्या कहते हैं, जेजेनम कहते हैं. और जो रिमेनिंग पार्ट होंगे उनको हम इलियम कहते हैं. लेकिन ज़्यादातर डाइजेशन जो होती है वो ड्यूडेनम में होती है. ताम जो कुछ डाइजेशन फूड के कुछ पार्टिकल बच जाएँ तो वो उसके बाद वो जेजेनम और इलियम में डाइजेस्ट हो जाते हैं. और डाइजेशन के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है. Second part is large intestine. It is made of three parts. Cecum. Sorry students, in my previous lecture I pronounced it wrong. Its pronunciation is cecum, colon and rectum. In large intestine water and salts are absorbed. So student, ये जो large intestine है इसके three parts होते हैं, cecum, colon and rectum. और large intestine का फंक्शन क्या है कि बॉडी के अंदर जितना भी वाटर, एक्सेस वाटर और सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करती है.
While the undigested food is converted into the solid form, it is then passed to the rectum. This undigested food is called feces. The rectum store feces temporarily and then move from the body through anus. So students, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि वो बॉडी से एक्सेस वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी के अंदर वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इस सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फीसेस कहते हैं। अब फीसेस क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए वो रेक्टम में टेम्पोरली जो होंगे वो वहां पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद बॉडी से एनएस के जरिए पास आउट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज लेस वाटर इनटेक कैन अफेक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, पानी की जो कमी है या हम बहुत कम मकदार में जब पानी पीते हैं तो उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या अफेक्ट होगा। Less water intake causes constipation. Water promote good digestion and regular bowel movement by keeping your stool soft and moving it easily through the digestive tract. Not drinking enough water can cause an overall fluid loss in the body. This fluid loss can lead to a decrease in blood volume that puts excess pressure on the heart to deliver oxygen and nutrients to the organ. Lack of water also cause fatigue. You may tend to be less physically active, another risk factor for weakened immunity. सो स्टूडेंट्स, कम मकदार में पानी पीने से सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन क्या है, पासिंग ऑफ हॉट फीसेज आउट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है कि एक पेनफुल प्रोसीजर है कॉन्स्टिपेशन की, हमारी बॉडी के जो फीसेज हैं वो बहुत हॉटली हमारी बॉडी से पास आउट होते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको भी प्रॉब्लम होती है इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से। अगर हम पानी को बराबर मकदार में नहीं पियेंगे तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो भी कम हो जाएगा और ये जो फ्लूइड कम होगा इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसके वॉल्यूम में भी कमी आएगी। इसके अलावा कम पानी पीने से हमारी तबीयत में बहुत सारी कम पानी पीने से हमारी बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हम वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते और फिजिकली हम इनएक्टिव हो जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट जो बहुत रिस्की फैक्टर है लेस वाटर इनटेक का, वो क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द correct option, do it on your textbook. Question number 4, write T for true and F for false statement, also do it on your textbook. Students, our first chapter human organ system is completed. You have to write all the questions plus diagrams on your notebook of science. Jazakillah, fi amanillah.